Yes, good afternoon, everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your history teacher. And today we are going to continue the same chapter, chapter 1, Nationalism in Europe, right? So, Nupur, thank you, Nupur, for responding. So, let me check one or two students. Are they aware about the topic which we are going or not? Let me check Raghavi. Raghavi, beta, unmute yourself. Tell me page number and topic from which we are going to start. Read. From page number 10, such conditions were viewed as obstacles. From here we will start. Page number 10. Such conditions were viewed. Thank you very much. Thank you. Beta, cameras on. Aditya, camera on, beta. Chalo. So, yesterday we have done about the economic liberalism. Okay. Then I have asked you to add some of the examples, though they were a little difficult, but I know that my good students will remember that. अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था कि so many trade restrictions were there and the system of the trading was time consuming, even complex system, difficult calculation. So many reasons were there that traders were not ready to do trade with other countries. Now, where there is a problem, there is a solution. Problem hoti hai, uska solution bhi hota hai. Now, yesterday we have discussed the problem that Nuremberg and Freiburg means different type of area and different type of measurement and different type of the value of the currency. Now we are going to solve this problem. Okay. Now one trade union, custom union will come. जो क्या करेंगे इन सारी problems को खत्म करेंगे. And that name is Zollverein. अपने आप बोलो, आप नाम Zollverein. ताकि बोलना आ जाए. जैसे जैकोबिन आसानी से बोल लेते हो ना, ग्रेड 9 में पढ़ा था. ऐसे Zollverein भी बोलना आना चाहिए. चार पांच बार बोल लो, आ जाएगा. चलो. Now, Shabnam beta, where are you? Sit in front of the camera. Hanji Raghav, unmute yourself and start reading such conditions. Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of an unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people and capital. चलो जी, ऐसी conditions बहुत बड़ी obstacle थी. Write down the meaning of obstacle. Obstacle means problem. कैसी conditions जो हमने कल पढ़ ली थी? हाँ रुद्रा. Ma'am, today there was a network issue, so I joined class late. कोई बात नहीं. So, अभी ma'am, what we have done? नहीं, अभी कुछ नहीं मैंने करवाया. यहीं से शुरू किया such conditions से. अभी राघव ने पढ़ना शुरू किया. ठीक है बेटा. चलो. तो ऐसी कंडीशन जो हमने कल डिस्कस की थी, वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. राघव ने ये लाइन पढ़ी, ऑब्स्टेकल इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास. अब जो न्यू कमर्शियल क्लास थी ना, जो पढ़े लिखे लोग थे, दे वांट टू डू ट्रेड विद अनदर कंट्रीज टू अर्न द प्रॉफिट so that the economy could be stable. But the thing was that so many kind of measurements, different kind of currency, different kind of calculation. So these obstacles were totally confusing the traders. अब इससे पढ़ा unhindered movement. They want कौन? Who want? The businessman class, commercial class, the new middle class. They want unhindered movement. बिना किसी रोक टोक के they want to do trade with the another countries. और कैसे करें? इतनी सारी प्रॉब्लम थी, है ना? Different type of measurement था. Yes, Raghav, continue बेटा. In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia
and joined by most of the German states. चलो जी, जहाँ प्रॉब्लम थी हल भी आ गया. Prussia was a powerful country. I usually say this since the beginning of the chapter that Prussia was a powerful country. तो प्रशिया ने इनिशिएटिव लिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. एक कस्टम यूनियन बनाई and its name was Zollverein. प्रशिया के बाद जर्मन स्टेट्स भी आ गई. ये क्या था Zollverein? What was this group? राघव. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. चलो जी, इन्होंने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए. नो टैक्स, नो कस्टम ड्यूटीज, करेंसी भी कम कर दी. नाउ 30 टाइप ऑफ करेंसी थी, नाउ इट बिकेम 2. इट रिड्यूस द करेंसी फ्रॉम 30 to 2. सोचो सिर्फ 500 के नोट और 1000 के नोट हो, कितना सही रहे. पर्स में खाली 100 की और 500 के नोट रहे, वैल्यू भी सेम रहे सब जगह पर, कितना इजी हो, है ना. सो नाउ ज़ोल्वेरिन ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ट्रेड फ्री कर दिया, नो बैनिंग, नो बैरियर्स एंड करेंसी 30 to 2. 30 तरह की करेंसी को हटाकर सिर्फ 2 तरह की करेंसी रह गई है. हाँ जी राघव, और क्या किया ज़ोल्वेरिन ने? The creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. चलो जी, रेलवे इंप्रूव कर दिया, रेलवे बहुत बढ़िया कर दिया. हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन. इकोनॉमिक इंटरेस्ट सब लोग ज्यादा लेने लग गए ताकि नेशनल यूनिफिकेशन हो. यूनिफिकेशन मीन्स यूनाइट हो, आपस में टूटे ना देश. जैसे हमारा सपना था ना वी वांट इंडिपेंडेंस, ऐसे ही इनका सपना था कि आपस में जुड़ के रहे. यस राघव. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. चलो, तो इस तरह उसी टाइम इकोनॉमिक नेशनलिज्म बढ़िया हुआ, तो उसके बाद फिर नेशनल सेंटिमेंट्स भी लोगों में और बढ़ गए. पैसा पास हो ना तो कॉन्फिडेंस आता है, अपनी पॉकेट में खूब सारा पैसा होना तो कॉन्फिडेंस आता है. तो हियर ऑल द ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन पीपल वर वेरी हैप्पी विद द ट्रेड. अब वो खुश हैं तो देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे. सो दिस वाज द पॉजिटिव एफर्ट्स डन बाय ज़ोल्वेरिन, द कस्टम यूनियन. अब कस्टमर कहीं भी जा सकते थे, दे वर फ्री टू डू ट्रेड विद एनी अदर कंट्रीज विदाउट एनी काइंड ऑफ कस्टम्स एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ बैरियर्स. थैंक यू वेरी मच राघव. नाउ शो मी थम्स अप इफ ज़ोल्वेरिन क्लियर टू यू. चलो, थैंक यू वेरी मच. हाँ नूपुर. यस नूपुर. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा. Ma'am, I wanted to ask you, ये जो guild restrictions, all these taxes, ये तो पहले नेपोलियन ने भी रिमूव कर दिए थे, फिर ज़ोल्वेरिन ने न्यू क्या किया इसमें? नेपोलियन ने सिर्फ रिमूव किए थे, नेपोलियन ने कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया था. अब प्रशिया ने एक डिपार्टमेंट बनाया, एक ग्रुप बनाया जिसका काम ही सिर्फ यही था. नाउ वी आर हैविंग एजुकेशन डिपार्टमेंट, वी आर हैविंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वी आर हैविंग आईटी डिपार्टमेंट, है ना. तो इसका मतलब एक हेड ने तो बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया ये होगा, कहीं पर नहीं भी हो रहा था. इन योर स्कूल द प्रिंसिपल इज सेइंग दैट दिस काइंड ऑफ कल्चर विल बी अडॉप्टेड फॉर ऑल द सब्जेक्ट. हु विल चेक देम? सो एसएसटी डिपार्टमेंट डिफरेंट, हिंदी डिपार्टमेंट डिफरेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट डिफरेंट. एक डिपार्टमेंट बन गया था ज़ोल्वेरिन का और इसका लीडर था प्रशिया. प्रशिया का नाम याद रखना, आगे बहुत कुछ करने वाला है प्रशिया. तो प्रशिया ने इनिशिएटिव लिया था, बाद में फिर जर्मन स्टेट्स भी आ गई थी और फिर ज़ोल्वेरिन बना था. नाउ पीपल आर हैप्पी, अंदर से खुश है, पैसा आ रहा है, बिजनेस क्लास हैप्पी, तो फिर वो नेशनलिज्म के लिए और अच्छा करने वाली है. 3 मार्क्स आंसर डायरेक्टली यू विल डू फ्रॉम हियर. यू योरसेल्फ विल मेक पॉइंट एंड यू योरसेल्फ विल मेक हेडिंग. एवरी टाइम रीटा मैम स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, पकी पकाई खीर नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इजी. डायरेक्ट आंसर यू कैन डू, जहां से कॉम्प्लिकेटेड आंसर होगा दैट आई विल टेल यू. वरना तो फ्रेडरिक सूरो वाला भी करवाने वाला नहीं था, बट आई टोल्ड यू, क्योंकि तब मुझे अब बड़े छोटे छोटे लगे थे ग्रेड 8 वाले बच्चे. नाउ वी हैव स्पेंड 1 month टुगेदर. अब मुझे पता है आप मुझे समझ गए हो और मैं आपको समझ गई हूँ. ये ज़ोल्वेरिन जैसे क्वेश्चन आप खुद कर दो. चलो, अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815. नाउ शैल आई आस्क वन थिंग. ईशान बेटा कैमरा ऑन कर. लेट मी आस्क फ्रॉम अवलीन. अवलीन अनम्यूट कर, थोड़ा प्लेटफॉर्म बना दे, आगे हमने क्या पढ़ना है, थोड़ा मूड बन जाए हमारा कि हमने पढ़ना क्या है. अवलीन
Yes, ma'am. ये कंजर्वेटिव कौन होते हैं? Conservative are the people, those who are in the favor of the religions and all. They can. ठीक So है, those who are those who are not in the favor of it, they want that the development should come slowly. हाँ ठीक है. देखो एक बच्चा, आजकल टाइम देखो कितना कंपटीशन है. If one child is stopped for a while, see 4, 5, 6 hands are raised. जहां से देखो कंपटीशन कितना है. एक बच्चे को भूले सही 6 हाथ खड़े हैं यहाँ पर आंसर देने को, जबकि कंजर्वेटिव बहुत इजी है. थैंक यू वेरी मच अवली, थैंक यू सो मच. अच्छा, नाउ लेट मी चेक योर ऑब्जर्वेशन स्किल. आई हैव चेक्ड वन टाइम इन क्लास. मुझे याद है फ्रेडरिक सूरो की पेंटिंग दिखाई थी आपको, and I have checked your observation skill, and you yourself answered 5 marks question. मुझे याद है. Now one more time I am checking your observation skill. Observe this painting on page number 11 for 30 seconds. Then I will ask some of the questions to you. फिर हम शुरू करेंगे पढ़ना. हाँ स्तुति. मैम आपने you just asked that what is conservatism तो उसके लिए रेज किया था. ठीक है ठीक है ठीक है. रुद्रा, ईशान, want to say something? Ishan, want to say something? Camera on. Beta, camera's on. Stuti, down hand. Ishan, down hand if you don't want to ask any question. Yes, Ishan, want to say something, beta? मैम मेरी साइड से मेरा कैमरा ऑन है. Okay, okay, ठीक है बेटा. Right. Lower hand, beta. Vansh, I am unable to see your face. Vansh. Chalo, now time up. Let me see what you have observed. Shubham, unmute yourself, beta. Can you see this picture? मैंने भी दिखाई स्क्रीन पे. हाँ जी. शुभम, can you explain this picture? तुझे क्या दिखा इसमें? Just I am asking general question. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Shubham. ऐसे 2-4 बातें बता दे. एक बता दे. Because we are having 25 members here. तो एक बात सबसे पूछ लेते हैं. शुभम, टेल मी वन थिंग. ये क्या है? इस पिक्चर में क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? नो नीड टू रीड फ्रॉम एनीवेयर, जस्ट टेल मी योर थॉट्स. आपने क्या ऑब्जर्व करा? नो. अरे कुछ नहीं दिखा फोटो में. हाँ, अरे कुछ तो अपने हम व्यूज देते हैं ना. चलो, वानी, अनम्यूट कर रही हूँ. What you have seen? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, it signifies that people do not have the right to present their thoughts as well as their views among the government. ठीक है. नूपुर. Ma'am, I interpreted that people of such some departments are saying, and rather than thinking upon the problems, they are just wasting their times while the leader is sitting there and he's just closing his eyes and sitting normally. All the people have words on their mouth. That means they're not discussing anything. They're just sleeping and wasting times looking here and there. चलो ठीक है. रुद्रा. Ma'am, I think so that here they want to do they want to talk, but they are forced to not talk. Like government is forcing them to not talk. ठीक है ठीक है ठीक है. तेजेश्वर. सबकी राय लेंगे ना? I think in this picture, the philosophers and the new middle class, they are thinking about the new resolution, the new change, but they are not allowed to express themselves. अच्छा. वंशिका.
Ma'am, in this, they are just showing us that they are not able to express themselves. As we can see that they have weird something on their faces, like they can't speak anything, and some of them are just wishing to speak, but they others are not listening to him. Like leader is just sitting, and some are looking here and there. So this shows that all of them were not having the right. Nupur, you raised hand, Ma'am, beta. I have spoken. I forgot to lower down my hand. Okay. Sorry. Okay. अच्छा चलो जी सम अप करें. आप लोग कह रहे हो कि some of the meeting is going on and all the people are sitting here but they have covered their mouth. मास्क नहीं पहना उन्होंने, मास्क नहीं है, उस टाइम वायरस नहीं था. They are lucky, उस टाइम वायरस नहीं था, but they are unlucky that they still are covering their mouth. उस टाइम के लोगों को मुंह पे पट्टी बांधकर ये कहना कि चुप होके बैठ जाओ. This is the main thing that you are observing in this picture. अब suppose today I will cover your mouth with a bandage and sit for the full day, not to speak anything. What will happen? Here I am going to teach in this class to 25 people, and क्या होगा if I will mute you all for 45 minutes, 50 minutes का lesson है. अकेली ही आऊं पढ़ा के बोल के चली जाऊं. Then what will happen? आपका फिर क्या फायदा? मेरे को तो पता भी नहीं चलेगा आप क्या चाहते हो, आपने क्या पूछना है ना. द सेम थिंग. अच्छा, तेजेश्वर ने और आप बच्चों ने मुझे बोला कि सम ऑफ द मीटिंग इज गोइंग ऑन एंड दे आर डिस्कसिंग समथिंग. पानी ने भी मुझे बताया, बट दे हैव कवर्ड देयर माउथ. सी व्हाट इज द फन ऑफ हैविंग मीटिंग? दे हैव कवर्ड देयर माउथ. अब आपके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, so your parents visit here to meet me and the teachers, and we also meet them. They discuss their problems with us about you, और हम लोग भी आपकी शिकायतें वगैरह लगाते हैं उनको. ठीक है ना. तो this is meeting, means we discuss problems, एक दूसरे से बात करते हैं. अगर वो स्कूल आए पेरेंट्स and they never discuss anything with us, सिर्फ हम ही बोलते जाएं, तो फिर वो मीटिंग थोड़ी ना हुई. या फिर वही बोलते जाएं, हम कुछ भी ना बोले, ओके ओके ठीक है. तो व्हाट इज द फन ऑफ हैविंग मीटिंग? सो हियर आप फोटोग्राफ में देखो दैट दीज पीपल डेलीगेट्स बैठे हैं, दे आर सिटिंग हियर. हाँ, मीटिंग गोइंग ऑन, धुरंधर बंदे बैठे हैं, बट दे हैव कवर्ड देयर माउथ. सो दीज पीपल आर, रेज योर हैंड्स, दीज पीपल आर 10G. These people are from 10G. 10G never keep quiet. Huh? Nupur, these people are? Ma'am, these are orthodox. These are conservative. हाँ, ऑर्थोडॉक्स हैं, ये कंजर्वेटिव पीपल हैं. ये कुछ नहीं बोलेंगे, मीटिंग में बैठेंगे, बड़े इंटेलिजेंट बंदे हैं, दे नो एवरीथिंग, बट कुछ नहीं बोलेंगे. दे विल फॉलो द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ किंग एंड क्वीन. जो राजा ने कह दिया, जो रानी ने कह दिया, समझो गॉड का कहा हो गया. दे विल नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ, they will directly follow the policy of king and queen. They are conservative. ठीक है, चलो. Now what happened? Conservative regime आया 1815 में. ओके, अब ये क्या था? ईशान, कनक, बेटा कैमरा ऑन करो, मुझे आप सब लोग दिखने चाहिए. हाँ जी. Now shall we start? Today, आदर्श, मेरे को तुझे सुनना बेटा, अपना माइक ठीक करवाओ ना. आदर्श, unmute yourself. Now mic working? Good afternoon. Good afternoon. You can't. I just read your lips ना. सिर्फ लिप रीडिंग की है मैंने. सुन नहीं पाई मैं तूने क्या बोला. आदर्श बेटा माइक ठीक करवाओ, हाँ, क्योंकि फिर ऐसे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो. चलो, अभिषेक राणा, अनम्यूट योरसेल्फ. अभिषेक राणा, तू कल क्लास में क्यों नहीं आया? Ma'am, I was gone outside. पता हमने कितना मिस किया तुझे. चलो, अच्छा पढ़ो बेटा. न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815. स्टार्ट बेटा. Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism.
चलो जी, नेपोलियन conservatism. कंजर्वेटिज्म। चलो जी, नेपोलियन चला गया, हार गया। अब कौन पूछता है? अब सारे कंजर्वेटिव फिर इकट्ठे हो गए। अब वो फिर से मोनार्की लाना चाहते हैं। दे बिलीव इन किंग एंड क्वीन, दे बिलीव इन ट्रेडिशन, दे बिलीव देयर कस्टम्स, उसी में सब ये मानते हैं। सेकेंड लाइन पढ़ो बेटा अभिषेक, ध्यान से सुनना। यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड द क्वेश्चन। If you will not understood the topic, then for the whole session this question will torture you. समझ नहीं आएगा। हाँ जी, कंटिन्यू बेटा अभिषेक। Conservative believe the established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property, and the family should be preserved. Ma'am, you are not audible. Yes, yes, it's good. हाँ जी, am I audible? Show me thumbs up. Am I audible? Okay, thank you, beta. Thank you so much. Thank you, sir. Now the thing was that which we are going to discuss about conservative people. Okay, those conservative people believe in monarchy, rule of king and queen, their institution, and social hierarchy. अब hierarchy आपके लिए एक नया word आया है. Hierarchy means from father to son, then his son means the seat will be in the family. So this is known as social hierarchy. Society में ही seat उन्हीं की family को जाए.
Means you can also you can also add a term in place of these two lines, otherwise same thing, right? हाँ जी, continue बेटा. Who was reading? मैं भूल गई. ईशान बेटा कैमरा ऑन. चलो अर्नव, you please continue. उसके आगे पढ़ो. Yes, ma'am. Most conservative. Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Yes, most conservative, however, did not propose to return of society of pre-revolutionary days. वो revolution के दिन नहीं चाहते थे. अब वो revolution नहीं चाहते थे. अब वो राजा को मानते थे. हाँ जी अर्नव. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. वो ये मानते थे कि नेपोलियन ने जो कोशिश की वो तो ठीक थी. कोशिश तो उसकी ठीक थी ना. नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था. वो अलग बात है कि मोनार्की होते हुए, डिक्टेटर होते हुए भी ही वाज वेरी एफिशिएंट लीडर. तो वो इसको मानते थे. बट इट कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की. वो कहते थे मोनार्की वाली बात उसकी कुछ सही थी. मतलब अब हो क्या रहा है, सुनो मेरी बात. इसको ना इंटरलिंक्ड करना, इसको रट्टा नहीं लगाना. मेरे वो 20-25 दिन मेहनत खराब नहीं करनी मेरी जो मैंने इस चैप्टर पे लगाई है. मेरे कहने का मतलब ये है, आई मीन टू से दैट दिस फुल पैराग्राफ इज द प्लेटफॉर्म फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली द नाउ नेपोलियन डिफीटेड. अब पूरा यूरोप, ऑलमोस्ट मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप आर अंडर कंट्रोल ऑफ द डिफरेंट पीपल. अब कुछ और लोग आ चुके हैं, दे नेवर बिलीव इन डेमोक्रेसी. तो ये नेपोलियन को हरा के नेपोलियन चला जाएगा. अब जो जीते हैं कंट्रीज वो फैसला करने वाले हैं यूरोप का. ये बात को ध्यान में रख के समझो. हाँ जी अर्नव. It could make state power more effective and strong. ये स्टेट पावर को, ये गवर्नमेंट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. पीपल विल बी डिक्लाइंड. पीपल नीचे हो जाएंगे. हाँ जी. A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. चलो फिर से वही चीजें आ गई. मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, एबोलिशन ऑफ फ्रीडम, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म और सर्फडम. फिर से सर्वेंट आ जाएंगे और सारा का सारा काम वैसे ही चलेगा. ओके, अंडरस्टूड. ये थे कंजर्वेटिव पीपल. नाउ ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ना, इन 1815 यहाँ पर ना छोटी सी स्पेस दी हुई है, हेयर लाइन. यू प्लीज राइट क्वेश्चन ओवर हेयर. जो मैं बोलती हूँ क्वेश्चन लिखो यहाँ. व्हाट वाज वियना कांग्रेस. मैं भी लिखती हूँ बोर्ड पे, देख लो आप. व्हाट वाज वियना कांग्रेस. (1815) What was Vienna Congress? 1815. Discuss its objectives. 5 marks. What was Vienna Congress? Discuss its objectives. Done, beta? चलो, अब ये वियना, जहां आपने लिखा ना वियना, वियना इज द नेम ऑफ अ प्लेस. एक जगह का नाम है वियना. ठीक है. तो यहाँ पर एक कांग्रेस हुई. डेलीगेट्स वर सिटिंग ओवर हियर. नेपोलियन तो बेचारा गया. कितना भी कोई पावरफुल बंदा हो, एक दिन एक टाइम के बाद डिक्टेटरशिप खत्म हो जाती है. नाउ आफ्टर डिफीटिंग ऑफ नेपोलियन, few people came. Today we will not write in anything on copy. बस ये क्वेश्चन छोड़ो, बुक पे लिख के, that's all. हाँ रुद्रा. Yes रुद्रा. Ma'am, can you please get
Side, ma'am, I was writing the question. Okay, okay. Ma'am, it is Viama or Viana? Vienna, V-I-E-N-N-A. It is the name of a place. आप पढ़ोगे आगे बेटा, बुक में पढ़ोगे आप. अब ये सारे डेलीगेट्स मिलकर बैठेंगे. वंशिका सिंगिंग अ सॉन्ग. वंशिका, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग? अच्छा, मुझे लगा गाना गा रही है तू. हाँ, किसी दिन सुनेंगे तेरा सॉन्ग. हाँ चलो. हाँ जी, रुद्रा लोअर हैंड बेटा. क्वेश्चन में इतना टाइम लगाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? रेवा अनम्यूट योरसेल्फ. रेवा से पूछो हम पढ़ने क्या वाले हैं. पहले कुछ ना टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, है ना, आप मानते हो. सो इट इज गुड ना कि कुंद्रा सर पास ही थे एंड आई कॉल्ड हिम. आई एम लिटिल पुअर इन दीज टेक्निकल वर्क्स. माइक डिस्कनेक्ट हो गया था तो आई कॉल्ड कुंद्रा सर, तो ही एडजस्टेड इट विद इन 2 minutes. तो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया, जस्ट वेट. तो आप समझ गए ना. यू वर शोइंग मी थम्स अप. देखो ऐसा है कि हर नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं से वी गॉट पॉजिटिविटी. डोंट यू थिंक सो? है ना. अब इस टाइम में भी वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. देख तो सकते हैं ना हम आपको, है ना. तो पॉजिटिविटी मिल जाती है. अच्छा, मेनी टाइम्स व्हाट हैपन व्हेन वी आर आस्किंग क्वेश्चन टू वन स्टूडेंट और वन स्टूडेंट इज आस्किंग क्वेश्चन टू मी, आंसर करने के लिए अदर पीपल आल्सो हेल्प. तो इससे हम लोग एक बॉन्डिंग होती है, हमें आपस में ना बहुत कुछ सीखते हैं. आई लाइक दैट थिंग. मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है. तो क्लासरूम का एटमॉस्फेयर जो थोड़ा सा मिस करते हैं ना, वो यहाँ पूरा हो जाता है जब आप बिना ऑनलाइन स्टडी से हमने एक दूसरे को समझना तो शुरू किया, है ना. बिना बोले समझना शुरू किया. मैंने पता क्या सीखा? मैंने ऑनलाइन टीचिंग से पता क्या सीखा? मैंने लिप रीडिंग सीखा. अभी उसका माइक नहीं ऑन हो रहा था ना, कहाँ गया वो, क्लास छोड़ गया शायद वो, और उसके मैं लिप रीडिंग पढ़ लेती हूँ. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू कनव मित्तल के घर चले. कनव मित्तल पढ़ना शुरू करो. पहले मुझे बताओ हम पढ़ने क्या वाले हैं. मैम हम लोग जहाँ पे ये क्या आपने क्वेश्चन लिखवाया उसके आगे से. हाँ, हम पढ़ने क्या वाले? रेवा से पूछते हैं. रेवा अनम्यूट योरसेल्फ. रेवा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गुड आफ्टरनून मैम वैसे औरत के बारे में. हाँ नहीं मैम अबाउट वियाना कॉन्ग्रेस. अच्छा, वियाना कौन थी? Who was that girl? I don't know. It was a place. It was a place. It was a name of a place. It was a name of a place. एक जगह का नाम है. अब सारे वियाना में बैठकर तकदीर लिखने वाले हैं यूरोप की, क्योंकि नेपोलियन तो चला गया. हाँ जी कनव, स्टार्ट रीडिंग बेटा. In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Venetia to draw up a settlement for Europe. वेनेशिया कहाँ लिखा? मैम ये थर्ड लाइन में विनीशिया. मैं विनीशिया कह रहा हूँ. मैम जो भी आपने लिखवाया वो वीना क्या है वो जगह का नाम? दसुआ पता है ना, तलवाड़ा पता है, अमृतसर जलंधर पता है, तो ये भी जगह का नाम है. वंशिका, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस? गाने गाई जा रही है. मैम मैं गाने नहीं गा रही, मैं जगह का नाम बोल रही हूँ. बोलना नहीं बोला गया तुझसे. आदर्श ने तो वैसे नहीं बोला जाता. हाँ, समीक्षा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस? मैम वेनिया. चलो, इसने नया नामकरण कर दिया. देखिए तो सही जरा. अर्नब. मैम वियाना. वियाना, यस, दिस इज द करेक्ट नेम. अब वियाना में बैठकर सब लोग तकदीर लिखने वाले हैं यूरोप की. यूरोप की किस्मत लिखने वाले हैं.
अब कनव ने पढ़ा इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब लीडर्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, योर 1 मार्क आंसर। चारों पावरफुल कंट्री इकट्ठे हो गए। अब सोचो नेपोलियन इतने पावरफुल बंदे को जिसने हराया तो वो नेपोलियन से ज्यादा ही पावरफुल होगा। तो ये चारों पावरफुल कंट्री इकट्ठे हुए हैं वियना में, अब सेटलमेंट करने वाले हैं। कनव ने पढ़ा सेटलमेंट फॉर यूरोप, यूरोप की किस्मत लिखने वाली। अभी किसी ने कुछ आंसर मार्क नहीं करना, कोई इंट्रोडक्शन, कुछ अंडरलाइन नहीं करना, पहले क्वेश्चन को समझो। आई विल गिव यू टाइम फॉर दिस। हाँ जी कनव, फिर क्या हुआ बेटा? The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Ma'am, what is this? मैंने भी जब कनव पहली बार सुना था मुझे कनव बोलना नहीं आया था। तू कनव मित्तल है? वो मेटरनिक है। Metternich, Duke Metternich. हाँ। The delegates drew up the Treaty of Vienna. Sorry, ma'am. Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. May continue? Wait कनव, पूरा साल ये ना वियना का कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। हिंदी में लिखो वियना। हमेशा याद रहेगा। दूसरा क्या था नाम उसका? मेटरनिक। अब इम्पोर्टेंट नेम है तो मैं लिखवा रही हूँ, ये भूलना नहीं है पूरा साल। ड्यूक मेटरनिक का नाम नहीं भूलना, ठीक है? वियना is the name of a place, Metternich is the name of a person. अब बोलना जरा गलत कैसे बोलता है तू? हाँ? Okay. Now Will start. continue? हाँ जी continue. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the Wait कनव, मैंने वो नहीं क्लियर किया। अब कनव ने पढ़ी पहली बार फर्स्ट थिंग, वो इंट्रोडक्शन थी जो उसने पहले पढ़ी कि सब लोग बैठकर वियना में यूरोप का फैसला करने वाले हैं। नाउ फर्स्ट थिंग ही हैज रेड द डेलीगेट्स मतलब बड़े बड़े धुरंधर बंदे, ड्रू द ट्रीटी ऑफ वियना। वियना में बैठकर एक ट्रीटी हुई। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ट्रीटी। ट्रीटी मींस एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हुआ वियना में बैठकर, एंड फर्स्ट वाज undo most of the changes that had come about in Europe during Napoleon Wars. नेपोलियन वॉर के टाइम पर जो जो नेपोलियन ने चेंजेस किए सारे के सारे undo। undo क्या होता है? What is undo? रुद्रा। मैम to reverse all the changes. To reverse all the changes। कंप्यूटर में भी एक डिमांड होती है, Yes, ma'am. कमांड होती है, वो जब हम Ctrl+Z। हाँ एरो ऐसा बना होता है तो अनडू हो जाता है, जो हमने अभी अभी अप्लाई करा था। तो जितने सारे नेपोलियन के टाइम पे चेंजेस हुए थे सारे के सारे अनडू कर दिए। ये पहला काम किया वियना कांग्रेस ने। ओके हाँ जी, सेकंड बेटा कंटिन्यू बेटा कनव। Yes, ma'am. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. A series of wait. दूसरी बात क्या करी वियना कांग्रेस ने? बर्बन डायनेस्टी which deposed during the French Revolution restored power. बर्बन डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी, बट अब उन्होंने दोबारा बर्बन डायनेस्टी ने पावर ले ली, और जो जो एरियाज इसको जा चुके थे, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज, जो जो फ्रांस को मिल चुकी थी टेरिटरीज वो सारी की सारी फ्रांस से वापस ले ली गई। दिस इज द सेकेंड चेंज डन बाय वियना कांग्रेस। यस कंटिन्यू बेटा। नाउ राघवी यू रीड बेटा, उसके बाद क्या हुआ?
बेटा आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास, टुमारो वी विल रीड फर्दर. हाँ ठीक है बेटा, ओके बाय बेटा, बाय.